this is our 12th lecture on the topic, that is chapter number 2nd, Mathematical Methods of 11th Science of Maharashtra Board. And in today's lecture, we are discussing two main properties of vector product. In last lectures, we have completed 8 properties of vector product and its proof. Now, in today's lecture, we are completing the remaining 2 properties of vector product and its proof. Now, out of which the first one is the vector product can be represented in terms of determinant of its component. वेक्टर प्रोडक्ट को अपन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या वेक्टर प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट दोनों को अगर सॉल्व किए तो अपने को एक ही आंसर मिलता है, ये अपने को प्रूव करना है. ठीक है. सो फॉर दिस पर्पस कंसीडर टू वेक्टर्स. से वेक्टर पी. नाउ लुक, द वेक्टर पी इज कंसीडर इन टर्म्स ऑफ पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के. व्हाट इज दिस पी एक्स? पी एक्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्स कंपोनेंट. What is py? Py is magnitude of vector p along y direction or magnitude of y component of vector p. Pz is the magnitude of vector p along z direction or magnitude of z component of vector p is pz. Similarly, vector q is represented like this: qxi plus qyj plus qzk. Now, we are performing the cross product. So, vector p cross vector q will be pxi. In place of cap, I write bar. pyj pzk cross vector q. Q means qxi plus qyj plus qzk. We have to cross multiply these two. Now, by using the first term, you have to multiply the second bracket. So, first term, px, qx, multiplication of magnitude. This is vector I, unit vector I, multiplied by unit vector I. This is product of vector and cross product. So, I have to write vector I cross vector I plus I have multiplied these two terms. Now, I have to multiply these two terms. So, plus, because here is plus. So, plus, multiplication of magnitude, px qy, I cross j. Again, multiply these two terms. So, plus, again plus, this is plus. So, px qz. Now, product of vectors means I and k. So, vector I cross vector k. Okay. I have multiplied by this first term to this second bracket so that I get these three terms. Okay. इथपर्यंत सगळ्यांना मॅथमॅटिक्स समजतं. Now, I have to multiply by this second term in the first bracket to second bracket. So, again plus. This is plus, so plus. This by this, या दोघांचं multiplication. We have to multiply these two terms. So, multiply magnitude by magnitude. So, py qx, j cross I. You cannot write I cross j. You have to write j cross I because cross product is not commutative. j cross I लिहिलं काय आणि I cross j लिहिलं काय सारखं असं वाटू देऊ नका. तसं नसतं. Okay. Now, multiply these two terms. Again plus. So, plus py qy, product of magnitudes into product of unit vector, j cross j. Again, multiply by second term in the first bracket to the third term in the second bracket. py qz, multiplication of magnitude. Now, multiplication of unit vectors, j cross k. Okay.
by multiplying with the second term in the first bracket to the second bracket. Second bracket contains 3 terms. So we get next 3 terms. Okay. Now multiply by the third term in the first bracket to the second bracket. So again plus multiplication of magnitude pz qx and k cross i. Now multiplication of these two terms pz qy k cross j. बरोबर आहे. नंतर मल्टिप्लिकेशन ऑफ दीज टू टर्म्स pz qz k cross k. So again I get 3 terms. So multiplication of these 3 terms with these 3 terms gives me total 9 terms. Okay, सगळ्यांना माहिती आहे, तेवढं मॅथमॅटिक्स सगळ्यांना येतं. Now I have to solve this. Before solving this, remember the points. I cross I is equal to j cross j is equal to k cross k. It is a null vector. ही प्रॉपर्टी आपण बघितलेली आहे. This property we have studied. The cross product between same rectangular unit vector is always 0 or null vector. So it is 0. Means I cross I, j cross j, k cross k 0 असतं. हे आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर एक फिगर आपल्याला माहिती होती. This is I, this is j, this is k. डिस्कशन करताना आपण बघितलंय. If you made I cross j, then you will get vector k. If you made j cross k, then you will get I. I cross j is equal to k, j cross k is equal to I, k cross I will be, क्या बनेगा? k cross I will be j. ठीक है, चलो I cross j बनेगा k. मैं यहां पर लिखता हूं उसको. देखो ये I क्रॉस I बन गया 0, j क्रॉस j ये 0 बन गया, ये k क्रॉस k 0 बन गया. ये फॉर्मूला के हिसाब से, ये अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से. देन I क्रॉस j क्या बनता है? I क्रॉस j किया अपन ने तो वेक्टर k बनता है. इसके जगह पे अपने को k लिखना है. j क्रॉस k किए तो क्या बनता है? I. माने ये j क्रॉस k के जगह पर अपने को I लिखना है. k क्रॉस I के जगह पर j बनता है. k क्रॉस I के जगह पर j बनता है. तो इसके जगह पर अपने को j लिखना है. ओके, यहां तक क्लियर है? अब अगर अपन ने j क्रॉस I बनाया तो अब एंटी क्लॉकवाइज, ये प्रॉपर्टी में देखे थे अपन ने, j क्रॉस I अपन ने अगर बनाया तो अपने को मिलता है माइनस k. j क्रॉस I बनता है माइनस k. I क्रॉस k क्या बनता है? I क्रॉस k बनता है माइनस j. k क्रॉस j क्या बनता है? k क्रॉस j बनता है माइनस I. ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन बराबर ध्यान में रखो. देखो आप, j क्रॉस I क्या बनता है? माइनस k. j क्रॉस I बनता है माइनस k, यानी कि इस j क्रॉस I के जगह पर मुझे माइनस k लिखना है. I क्रॉस k क्या बनता है? माइनस j. I क्रॉस k बनता है माइनस j. I क्रॉस k बनता है माइनस j. तो इसकी जगह पर मुझे माइनस j लिखना है. और j क्रॉस I देखा अपन ने, I क्रॉस k देखा, k क्रॉस j क्या बनता है? k क्रॉस j बनेगा माइनस I. k क्रॉस j की जगह पर मुझे माइनस I लिखना है. ओके, अब बराबर ध्यान में रखो. यही टर्म मैं फिर से लिख रहा हूं, px qx इंटू 0, ये बनेगा 0. पहली टर्म बन गई 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे तुम, या नल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 0 बनेगा. उसके बाद में px qy और I क्रॉस j की जगह पर क्या लिखना है अपने को? k. सो k. उसके बाद में px qz इंटू माइनस j, सो माइनस px qz इंटू j.
ये तीसरी टर्म की जगह मैंने ये लिखा माइनस पी एक्स क्यू जेड इंटू जे। चौथी टर्म यहां पर भी माइनस के है, तो माइनस साइन पहले निकाल लेता मैं कॉमन में, पी वाई क्यू एक्स के, ये बन गई चौथी टर्म। पांचवी टर्म जे क्रॉस जे जीरो है, तो पांचवी टर्म रहेगी जीरो। छठी टर्म प्लस, हाँ ये छठी टर्म है, पी वाई क्यू जेड, और जे क्रॉस के जगह पर क्या लिखना है अपने को, आई। जे क्रॉस के जगह पर मैंने आई लिखा, ये होगी छठी टर्म। सातवीं टर्म ये बन गई, सो प्लस पी जेड क्यू एक्स इंटू जे, क्योंकि के क्रॉस आई बनता है जे। एट्थ टर्म, आठवीं टर्म, पी जेड क्यू वाई इंटू माइनस आई, सो माइनस साइन इज हियर आई, ये बन गई आठवीं टर्म। और नौवीं टर्म के क्रॉस के है, उसमें जीरो है, सो नाइन्थ टर्म इज जीरो। ओके, सो फर्स्ट टर्म is 0 because I cross I is 0. Fifth term is 0 because J cross J is 0. And ninth term is 0 because K cross K is 0. और I cross J के जगह पर मैंने K लिखा, I cross K के जगह पर माइनस J लिखा मैंने, J क्रॉस I के जगह पर माइनस K लिखा, ये माइनस K लिखा J क्रॉस I की जगह पर, J क्रॉस K के जगह पर I लिखा, J क्रॉस K के जगह पर I लिखा, K क्रॉस I के जगह पर J लिखा, और उसके बाद में K क्रॉस J के जगह पर माइनस I लिखा। ठीक है, नाउ लो, आई एम टेकिंग I कॉमन। I कॉमन मैं ले रहा, जिन जिन टर्म में I है वो टर्म मेरे पास है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, उसमें का मैं I कॉमन निकाला, तो मुझे ब्रैकेट में लिखते आता पी वाई क्यू जेड, इसमें का आई निकाला मैंने, पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, ये माइनस पी जेड क्यू वाई, आई अपन ने कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, आई अपन ने कॉमन लिया। अब मैं जे जिन टर्म में है उनमें से माइनस जे कॉमन निकाला, माइनस जे कॉमन निकाल रहा मैं, हाँ माइनस जे। तो माइनस जे अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर रहेगा पी एक्स क्यू जेड, बराबर है, माइनस जे मैंने कॉमन निकाला है, यहां पर बनेगा पी एक्स क्यू जेड, और इसमें से मैंने माइनस जे कॉमन निकाला, प्लस जे है इसमें, लेकिन मैंने माइनस जे कॉमन निकाला, तो क्या बनेगा माइनस पी जेड क्यू एक्स। ओके, अब मैं प्लस के कॉमन निकालता, अब अपने पास दो टर्म बाकी है, ये दो टर्म बाकी है, उसमें से मैंने प्लस के कॉमन निकाला, प्लस के अगर मैंने कॉमन निकाला तो क्या रहेगा, रहेगा पी एक्स क्यू वाई, कलर में चेंज करता उसका, पी एक्स क्यू वाई, ब्रैकेट में पी एक्स क्यू वाई रहेगा, इसमें का के निकाले हुआ अपन ने कॉमन है, इसमें से भी अपन ने के कॉमन निकाला हुआ है, प्लस के निकाला हुआ है, इसलिए माइनस पी वाई क्यू एक्स। इस तरह से वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इस तरह से अपन ने छुड़ाया मल्टीप्लीकेशन बना के, तो अपने को मिलता है I टाइम्स पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई माइनस J टाइम्स पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स प्लस K टाइम्स पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। ठीक है, इसका रिजल्ट अपने को ये मिल रहा, मैं इसको ब्रैकेट में डालता, ये अपनी काम की चीज मिल गई अपने को, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता, ये पूरा बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, क्या किया फिर से ध्यान में रखो, वेक्टर P अपन ने कंसीडर किया इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बराबर है, और इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, और उनका प्रोडक्ट लिया, उनका प्रोडक्ट बनाया अपन ने, उसको सॉल्व किया,
पहले ब्रैकेट में 3 टर्म थे, सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म थे, इसलिए अपने को टोटल 9 टर्म्स मिले। इन 9 टर्म्स में के 3 टर्म्स जीरो बन गए। क्यों जीरो बन गए? क्योंकि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के जीरो होते हैं। तो ये पहली टर्म, पांचवी टर्म और 9th टर्म बिकम्स जीरो। और ये सेकंड प्रॉपर्टी अपन यूज की रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर की, कि दो डिफरेंट रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर का अपन ने अगर क्रॉस प्रोडक्ट बनाया तो अपने को अलग यूनिट वेक्टर मिलता है। ये प्रॉपर्टी अपने पास थी। सो मैंने आई क्रॉस जे किया तो मुझे मिलेगा वेक्टर के, जे क्रॉस के किया तो मुझे मिलेगा आई, के क्रॉस आई किया तो मुझे मिलेगा जे। क्लॉकवाइज गए तो, और एंटी क्लॉकवाइज गए तो जे क्रॉस आई किए तो माइनस के मिलता, के क्रॉस आई क्रॉस के किए तो माइनस जे मिलता, के क्रॉस जे किया तो माइनस आई मिलता। ठीक है, वो हिसाब लगाया अपन ने। तो यहां पर आई क्रॉस जे की जगह पर के मिलेगा अपने को, आई क्रॉस के जगह पर माइनस जे मिलेगा, जे क्रॉस आई के जगह पर माइनस के मिलेगा, जे क्रॉस के जगह पर आई मिलेगा, के क्रॉस आई के जगह पर जे मिलेगा, के क्रॉस जे के जगह पर माइनस आई मिलेगा, और वो वैल्यूज मैंने पुटअप कर दी। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यूज वी गेट पहली टर्म जीरो, यहां पर आई क्रॉस जे के जगह पर अपने के मिला, सो वी गेट पी एक्स क्यू आई के। इस तरह से अपने को ये 6 टर्म मिल गई, 3 टर्म जीरो हो गई। अब ये जो 6 टर्म अपने को मिली उनमें से 2 टर्म में आई है, 2 टर्म में जे था, 2 टर्म में के था। देखो इन 2 टर्म में आई दिख रहा आपको, इन 2 टर्म में जे दिख रहा आपको, और इन 2 टर्म में के दिख रहा। मैंने क्या किया, आई कॉमन निकाला, जे कॉमन निकाला, के कॉमन निकाला। सो आई कॉमन निकाला तो मेरे पास जो 2 टर्म थी उनमें से बच गया पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई। दूसरे में मैंने जे कॉमन ही निकाला, मैंने माइनस जे कॉमन निकाला। सो माइनस जे कॉमन निकालने के बाद मेरे पास बचा पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स, और 2 टर्म जो बाकी रह गए, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से मैंने के बाहर निकाला तो इसमें बचा पी एक्स क्यू वाई, और इसमें बचा माइनस पी वाई क्यू एक्स। इस तरह से मेरे पास पी क्रॉस क्यू का ये आंसर मिल गया नंबर 1। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन बना के अपने को क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर में का इस तरह से मिलता है। अब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा और वो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है वो मैं देखूंगा, और बाद में फिर अपन उसका टैली करेंगे या उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट। ये जो वर्टिकल 2 लाइन आपको दिख रहे हैं पैरेलल, ये रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेंट की साइन। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट के ये है कंपोनेंट्स, इनको डिटर्मिनेंट के कंपोनेंट बोलते हैं। आई जे के, these are unit vector along particular direction, this thing you know, whereas px is what? Px is component of p along x direction. This is unit vector along x direction, this is component of p along x direction, this is component of q along x direction. What is this? This is component of p along y direction. What is this? This is component of q along y direction. And what is this? This is unit vector along y direction. Similarly, vector k, it is unit vector along z direction. What is this? This is component of p along z direction. What is this? This is component of q along z direction. Now if I solve this determinant, then what I get? Now look, while solving the determinant, take this common. So I is common. Multiply this term by this term. So py qz, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पी जेड क्यू वाई। देखो इसको कॉमन निकालना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई कॉमन निकाला, फिर इसको कॉमन निकालो, जे कॉमन निकालो, लेकिन मैं प्लस जे कॉमन नहीं निकालता, मैं माइनस जे कॉमन निकालता, क्योंकि मुझे प्रोसीजर और मेरी जो टेक्निक है वो तुम्हारे को ध्यान में आएगी बाद में। मैंने माइनस जे कॉमन निकाला। अब माइनस जे अगर अपन ने कॉमन निकाला तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे के जो कंपोनेंट है उसको छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सो वी गेट पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स।
ठीक है, ये कॉमन लिया अपन ने, माइनस जे कॉमन लिया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस जे कॉमन निकालने के वजह से ये मेरी सीक्वेंस बराबर रही। ठीक है, अब अपने को कॉमन निकालना है के। मैंने इसको कॉमन निकाला तो उसके नीचे के कंपोनेंट छोड़ दो, ये दोनों में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सो प्लस के कॉमन निकाला अपन ने, इसको इससे मीन्स अपने को लिखना है पी एक्स क्यू वाई माइनस माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन पी वाई क्यू एक्स, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। नाउ लो, इफ यू सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को अगर अपन ने सिंप्लीफाई किए तो अपने को ये मिल रहा, आई पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई माइनस जे टाइम्स पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स प्लस के टाइम्स पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। अपने पी क्रॉस क्यू किए थे, इसके पहले पी क्रॉस क्यू किए थे तो क्या रिजल्ट है अपने पास, आई टाइम्स पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई बराबर है दोनों, माइनस जे टाइम्स पी एक्स क्यू जेड माइनस जे टाइम्स पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स माइनस पी जेड क्यू एक्स प्लस के टाइम्स पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, के टाइम्स पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स। दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो अपने को क्या लिखते आता, वी कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। ये डिटर्मिनेंट का प्रूफ और पी क्रॉस क्यू अपन ने बनाया तो उसका भी जो सॉल्यूशन है वो दोनों सरीके है, सरीके मानिए दोनों इक्वल है। सो द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स can be represented as the determinant, the is important, the determinant in terms of its magnitude of components. Okay, so this proves our 9th property. थोड़ी सी लेंदी है लेकिन इजी है. The proof of the last property, that is property number 10. What property states? Magnitude of cross product of two vectors. समजा दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रोडक्ट आपण जर घेतला तर त्याची मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॅरलोग्राम. त्याची मॅग्निट्यूड किती असते तर त्या पॅरलोग्रामच्या एरिया एवढी असते. इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॅरलोग्राम हुज ऍडजसेंट साइड्स आर द टू वेक्टर्स. ऍडजसेंट साइड्स त्या पॅरलोग्रामचे जर आपण दोन वेक्टर घेतले तर तो जो पॅरलोग्राम असेल त्या पॅरलोग्रामचा एरिया किती असेल तर त्या क्रॉस प्रोडक्टच्या मॅग्निट्यूड एवढी. नाउ लुक, सपोज कन्सिडर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन वेक्टर ए क्रॉस बी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ सेकंड इंटू साइन ऑफ द अँगल बिटवीन देम. ही झाली रिझल्टंटची मॅग्निट्यूड आणि रिझल्टंटची डायरेक्शन परपेंडिक्युलर टू बोथ ॲज पर राईट हँड थंब रूल अँड दिस युनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन. सो द मॅग्निट्यूड ऑफ रिझल्टंट ए क्रॉस बी is AB sin theta. This thing you know. क्रॉस प्रोडक्टची मॅग्निट्यूड एवढी आहे. ए म्हणजे फर्स्टची मॅग्निट्यूड इंटू सेकंडची मॅग्निट्यूड इंटू साइन ऑफ द स्मॉलर अँगल बिटवीन देम. दिस थिंग यू नो. क्रॉस प्रोडक्टची मॅग्निट्यूड एवढी असते. नाउ लो, आय एम कन्सिडरिंग दिस टू बी वेक्टर ए and this to be the vector B. Angle between these two vectors is say theta. Now complete the parallelogram. This is diagonal of the parallelogram. Okay. Now height of this parallelogram is this much. Height of the parallelogram is this much. किती असेल? दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, बरोबर आहे. दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. हायपोटेन्यूस इज इक्वल टू बी. दिस एंगल इज थीटा and this side is opposite to theta. So length of this side is b sin theta, means height
is equal to b sin theta. Height of the parallelogram is b sin theta. Now tell me area of parallelogram. What is formula? What is formula for area of parallelogram? Formula is base into height. Area of parallelogram is base into height. Base is this much. This length is base of the parallelogram. Means magnitude of A is base of the parallelogram. And height is this much. किती height? H is b sin theta. So b sin theta. So area of this parallelogram is AB sin theta. And what is AB sin theta? AB sin theta is magnitude of A cross B. Area of this parallelogram is AB sin theta, and AB sin theta is nothing but magnitude of cross product of these two vectors. These two vectors are the adjacent sides of parallelogram. Now look, area of parallelogram is found to be magnitude of A cross B, means the magnitude of cross product is equal to area of parallelogram is equal to area of parallelogram, या पॅरलोग्रामचा एरिया whose adjacent sides are the two vectors. त्याचे जे ॲडजसंट साइड्स आहेत त्या दोन वेक्टर्स असतील. मग असा जो पॅरलोग्राम असेल त्याचा एरिया किती असेल तर त्या दोन वेक्टरच्या क्रॉस प्रॉडक्टच्या मॅग्निट्यूड एवढा. पॉइंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ए क्रॉस बी काढायचं, त्याची मॅग्निट्यूड काढायची, ती मॅग्निट्यूड म्हणजेच पॅरलोग्रामचा एरिया. नाव आता एक समोरचा पॉइंट सांगतोय जो सिलेबसमध्ये नाहीये. दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. हा एवढा ट्रायंगल कन्सिडर करा. हा ट्रायंगलचा एरिया या पॅरलोग्रामच्या एरियाच्या हाफ असेल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पॅरलोग्राम. सो इफ I write like this, half of magnitude of A cross B will be equal to, it is equal to area of triangle, and magnitude of A cross B is equal to area of parallelogram. Remember both the points. These are important point. Okay, so this is all about the property number 10, which proves that magnitude of cross product means AB sin theta is equal to area of the parallelogram whose adjacent sides are the two vectors. झाला पॉइंट क्लिअर. ही 10वी प्रॉपर्टी, त्याचं प्रूफ. आता तुमच्या सिलेबसमध्ये काहीच प्रॉपर्टीचे प्रूफ दिलेले आहेत, सगळ्या प्रॉपर्टीचे प्रूफ दिलेले नाहीत. त्यामुळे जे प्रूफ दिलेले असतील तेवढेच फक्त तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारले जातील तुमच्या 11वीच्या परीक्षेमध्ये. ठीक आहे, पण पॉईंट सगळे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. तो पॉईंट कसा मिळतो म्हणून मुद्दाम मी सगळ्या प्रॉपर्टीज डिस्कस केल्या आहेत किंवा प्रूव्ह करून दाखवल्या आहेत. सो द प्रॉपर्टी नंबर 9, हा नंबर थोडा वेगळा आला आहे. आपण ज्या सिक्वेन्सने घेतला तो सिक्वेन्स थोडासा बदलवला होता, त्यामुळे हा नंबर बदलला आहे. ठीक आहे. प्रॉपर्टी नंबर 9 इज द वेक्टर प्रॉडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनंट ऑफ इट्स रेक्टँग्युलर कंपोनंट. त्याच्या डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला तो क्रॉस प्रॉडक्ट दाखवता येतो, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. सो फॉर दिस पर्पज लेट अस कन्सिडर टू वेक्टर्स, वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू, इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टँग्युलर कंपोनंट्स. ओके, वेक्टर पी इज पी एक्स आय प्लस पी वाय जे प्लस पी झेड के, अँड वेक्टर क्यू इज क्यू एक्स आय प्लस क्यू वाय जे प्लस क्यू झेड के. नाउ पी क्रॉस क्यू वी हॅव टू फाइंड. सो पी क्रॉस क्यू, so this is vector P cross Q. आहे बरोबर. सो P क्रॉस Q. सो या फर्स्ट टर्मनी पहिले या सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून घ्या, नंतर सेकंड टर्मनी आपण सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करू तिन्ही टर्मला, नंतर या पहिल्या ब्रॅकेटमधल्या थर्ड टर्मनी आपण सेकंड ब्रॅकेटमधल्या तीनही टर्मला मल्टिप्लाय करू. अशा टोटल 9 टर्म्स आपल्याला मिळतील. सो फर्स्ट टर्म product of magnitude px qx, this is unit vector I, this is unit vector I, आणि दोघांमध्ये काय असेल क्रॉस प्रॉडक्ट. सो I क्रॉस I. पहिली टर्म हा मिळाला आपल्याला
त्या दोघांच्या प्रॉडक्टची पहिली टर्म. नाव पहिल्या ब्रॅकेटमधली पहिली टर्म, दुसऱ्या ब्रॅकेटमधली दुसरी टर्म. सो प्रॉडक्ट ऑफ दिस टू पी एक्स क्यू वाय हा वेक्टर युनिट वेक्टर आय आणि इथला युनिट वेक्टर जे. सो आय क्रॉस जे. आलं दुसरी टर्म लक्षात. त्यानंतर आता या पहिल्या टर्मनी सेकंड ब्रॅकेटमधल्या तिसऱ्या टर्मला मल्टिप्लाय करायचं आहे आपल्याला. सो याचा आणि याचा प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे आपल्याला. सो पी एक्स क्यू झेड आय क्रॉस के. आलं बरोबर. ठीक आहे. त्यानंतर आता या सेकंड टर्मनी मल्टिप्लाय करायचं. मल्टिप्लाय बाय द सेकंड टर्म टू द सेकंड ब्रॅकेट. पहिले multiplication of these two terms, then multiplication of these two terms, then multiplication of these two terms. So first this and this multiplication py qx आलं बरोबर. आणि multiplication of unit vector j and unit vector i. So j cross i आहे बरोबर. then second term फर्स्ट ब्रॅकेट मधली सेकंड टर्म, सेकंड ब्रॅकेट मधली सेकंड टर्म या दोघांचा प्रॉडक्ट. सो py qy j क्रॉस j. बघा बरोबर आहे का. पी वाय क्यू वाय जे क्रॉस जे. देन पहिल्या ब्रॅकेटमधली सेकंड टर्म, सेकंड ब्रॅकेटमधली थर्ड टर्म पी वाय क्यू झेड मॅग्निट्यूडचा प्रॉडक्ट इंटू युनिट वेक्टरचा प्रॉडक्ट जे क्रॉस के पी वाय क्यू झेड इंटू जे क्रॉस के आहे बरोबर. हे झालं सेकंड टर्मनी सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करून झालं. पुढच्या तीन टर्म्स आपल्याला मिळाल्या. पहिल्या टर्मनी मल्टिप्लाय केलं 3 टर्म्स मिळाल्या. सेकंड टर्मनी मल्टिप्लाय केलं 3 टर्म्स मिळाल्या. आता या थर्ड टर्मनी मल्टिप्लाय करू फर्स्ट ब्रॅकेटमधल्या, थर्ड टर्मनी मल्टिप्लाय करू सेकंड ब्रॅकेटला. पुन्हा आपल्याला 3 टर्म्स मिळतील. सो मल्टिप्लिकेशन ऑफ दिस टू. सो पी झेड क्यू एक्स के क्रॉस आय, के आणि आयचा प्रॉडक्ट के क्रॉस आय प्लस पी झेड क्यू वाय के क्रॉस जे. देन पी झेड क्यू झेड के क्रॉस के क्रॉस के. आता इथे या 9 टर्म्सकडे व्यवस्थित लक्ष द्या. लुक ॲट दिस 9 टर्म्स. हे बघा आय जे के आय जे के जे आय जे के के आलं लक्षात. इथे बघा एक्स वाय झेड एक्स वाय झेड वाय एक्स वाय झेड हे तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी मुद्दाम सांगितलं. नाव आता ह्या प्रॉपर्टी आपण बघितलेला आहे. आय क्रॉस आय इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के 0 किंवा नल वेक्टर असतो तो. त्याच प्रकारे आय क्रॉस जे म्हणजेच के, जे क्रॉस के म्हणजेच आय, के क्रॉस आय म्हणजेच जे क्रॉस आय म्हणजेच मायनस के क्रॉस जे म्हणजे मायनस आय आणि आय क्रॉस के म्हणजे मायनस जे. सो पुट दिस व्हॅल्यू हिअर. याच्यामध्ये त्या व्हॅल्यूज जर पुटअप केल्या तर आपल्याला मिळतं पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू आय क्रॉस आय आहे 0, त्यामुळे फर्स्ट टर्म बिकम 0. सो इट इज 0. नल वेक्टर म्हटलं तरी चालतं त्याला, कारण की हा नल वेक्टर मिळाला. आय क्रॉस आय इज नल वेक्टर मल्टिप्लाइड बाय पी एक्स क्यू एक्स. सो नल वेक्टर. देन पी एक्स क्यू वाय आय क्रॉस जे म्हणजे काय. आय क्रॉस जे म्हणजे के. सो के. देन पी एक्स क्यू झेड आय क्रॉस के म्हणजे काय. आय क्रॉस के म्हणजे मायनस जे. सो मायनस जे आला. सो पुट द व्हॅल्यूज हिअर यू विल गेट लाईक दिस. बघून घ्या बरोबर येतं का तर. सो 3 टर्म्स आर 0 वेक्टर्स. सो निग्लेक्ट देम, त्यांना काढून टाका. फक्त 6 टर्म आपल्याजवळ बाकी आहेत. या 6 टर्म्स मी बरोबर लिहितो आहे. पहिले आय असणाऱ्या टर्म लिहितो, नंतर जे असणाऱ्या टर्म लिहितो, नंतर के असणाऱ्या टर्म. आय असणारी टर्म ही एक आहे, आय असणारी ही दुसरी आहे. सो पी वाय क्यू झेड आय आणि ही काय आहे मायनस आहे ना. सो मायनस पी झेड क्यू वाय आय जे असणाऱ्या टर्म एकत्र केल्या म्हणजे जवळजवळ लिहिले आपण. ही टर्म लिहिली पी झेड क्यू एक्स जे आणि ही लिहिली मायनस
पी एक्स क्यू झेड जे मायनस पी एक्स क्यू झेड जे. तशाच के असणाऱ्या टर्म जवळजवळ घेतल्या आपण, ही आणि ही. सो पी एक्स क्यू वाय के मायनस पी वाय क्यू एक्स के. ठीक आहे. सो पी क्रॉस क्यू आपल्याला या ठिकाणी मिळाला. या दोन टर्ममध्ये आय होता, आय कॉमन काढला. या दोन टर्ममध्ये जे होता, मायनस जे कॉमन काढला, प्लस जे नाही कॉमन काढला, मी मायनस जे कॉमन काढला. आणि या दोन टर्ममध्ये के होतं, सो टेक के कॉमन. द टर्म विल बी लाईक दिस. सो पी क्रॉस क्यूचं ॲन्सर मिळतं आपल्याला आय टाइम्स पी वाय क्यू झेड मायनस पी झेड क्यू वाय मायनस जे टाइम्स पी एक्स क्यू झेड मायनस पी झेड क्यू एक्स प्लस के टाइम्स पी एक्स क्यू वाय मायनस पी वाय क्यू एक्स. ठीक आहे. त्याला इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं मी. पी क्रॉस क्यूची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली. नाव आता हा डिटर्मिनंट आपल्याकडे आय जे के हे ते युनिट वेक्टर एक्स वाय झेड डायरेक्शनने असणारे. पी एक्स पी वाय पी झेड हे पी वेक्टरचे एक्स वाय झेड कंपोनंट. क्यू एक्स क्यू वाय क्यू झेड हे क्यू वेक्टरचे एक्स वाय झेड कंपोनंट. यांचा मी डिटर्मिनंट तयार केला. आणि हा डिटर्मिनंट जर मी सॉल्व केला, इफ आय सॉल्व दिस डिटर्मिनंट, then what I will get this is the solution of this determinant. हे या डिटर्मिनंटचं सोल्युशन आहे. सो आय हा जर कॉमन काढला तर यानी याला मल्टिप्लाय करावं लागतं, मायनस यानी याला मल्टिप्लाय करावं लागतं. सो पी वाय क्यू झेड मायनस क्यू वाय पी झेड किंवा पी झेड क्यू वाय, पी वाय क्यू झेड मायनस पी झेड क्यू वाय. नंतर मायनस जे कॉमन काढायचा, मायनस जे कॉमन काढलं तर यानी याला मल्टिप्लाय करायचं, मायनस यानी याला मल्टिप्लाय करायचं. मायनस जे कॉमन काढला, यानी याला म्हणजे पी एक्स क्यू झेड मायनस पी झेड क्यू एक्स. ओके. नंतर के कॉमन काढायचा, प्लस के कॉमन काढायचा. हा प्लस के कॉमन काढायचा, त्याच्या खालचे कंपोनंट सोडून द्यायचे. बाकीचे जे दोन कॉलम आहेत त्यांच्यामधल्या कंपोनंटचा प्रॉडक्ट घ्यायचा आपल्याला. यानी याला मायनस यानी याला, पी एक्स क्यू वाय मायनस पी वाय क्यू एक्स. सो दिस इज सोल्युशन ऑफ दिस डिटर्मिनंट. आता हे जे सोल्युशन आपल्याला मिळालं याला मी इक्वेशन नंबर 2 म्हटलं. आणि इक्वेशन नंबर 1 मला माहितीच आहे. इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2च्या राईट हँड साईड सारख्याच आहेत. सो ॲज राईट हँड साईड आर सेम मीन्स लेफ्ट हँड साईड आर सेम. सो वेक्टर पी क्रॉस क्यू लाच आपण या डिटर्मिनंटच्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो. सो दिस प्रूव्ज द प्रॉपर्टी. सो डिटर्मिनंट ऑफ टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कॅन बी रिप्रेझेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनंट्स ऑफ कंपोनंट ऑफ द टू वेक्टर. अशी ती प्रॉपर्टी आपण प्रूव्ह केली. अँड द लास्ट प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 10 इज द मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॅरलोग्राम हुज ॲडजेसंट साइड्स आर द टू वेक्टर्स. म्हणजे दोन वेक्टरचा क्रॉस प्रॉडक्ट घेतल्यानंतर त्याची जी मॅग्निट्यूड असते तर ती मॅग्निट्यूड किती असते, तर त्या दोन वेक्टर ॲडजसंट साईड घेऊन जर आपण एखादा पॅरलोग्राम तयार केला तर त्या पॅरलोग्रामच्या एरिया एवढी ती मॅग्निट्यूड असते, असा त्या प्रॉपर्टीचा अर्थ आहे. अँड वी हॅव टू प्रूव्ह दिस मीन्स वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पॅरलोग्राम. ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. आता लक्ष द्या. लेट अस कन्सिडर टू वेक्टर्स वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू which are represented by adjacent sides of a parallelogram OPRQ. OPRQ या पॅरलोग्रामच्या ॲडजसंट साईड्सवर वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यू आपण दाखवले. लेट अँगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू थीटा. हा अँगल समजा थीटा आहे. हा मी परपेंडिक्युलर टाकला. हा परपेंडिक्युलर म्हणजेच काय असेल, या पॅरलोग्रामची हाईट. मग आता हायपोटेनियस आहे क्यू एवढा. या ट्रायंगलचा विचार करा. हायपोटेनियस इज क्यू, दिस अँगल इज थीटा. So opposite side of theta will be q sin theta. So this side of the parallelogram is q sin theta. Okay. Now आता आपल्याला माहिती काय, p क्रॉस q ची मॅग्निट्यूड किती असते, p q sin theta. बरोबर आहे ना. p क्रॉस q जर वेक्टर तुम्ही काढला तर त्याची मॅग्निट्यूड किती येते, p q sin theta. आता हा जो पॅरलोग्राम आहे या पॅरलोग्रामचा एरिया शोधू आपण. एरिया ऑफ पॅरलोग्राम इज बेस इंटू हाईट. बेस किती पॅरलोग्रामचा, हा ही साईड म्हणजे बेस आहे, म्हणजे ज्या पीची मॅग्निट्यूड म्हणजे बेस. लेंथ ऑफ द साईड म्हणजे बेस असते, बरोबर आहे. त्याची डायरेक्शनचा विचार करत नाही आपण लेंथमध्ये, म्हणजेच वेक्टर पीची मॅग्निट्यूड.
म्हणून पी घेतलं मी, बेसला पी म्हटलं. आणि हाईट किती आहे पॅरलोग्रामची, तर क्यू साईन थिटा. सो पी इंटू क्यू साईन थिटा. म्हणजेच एरिया ऑफ पॅरलोग्राम इज इक्वल टू पी क्यू साईन थिटा. पी क्रॉस क्यूची मॅग्निट्यूड पण पी क्यू साईन थिटा आहे आणि एरिया ऑफ पॅरलोग्राम पण पी क्यू साईन थिटा आहे. तर याचा अर्थ काय, मॅग्निट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पॅरलोग्राम. मॅग्निट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू इज एरिया ऑफ या पॅरलोग्रामचा एरिया म्हणजेच पी क्रॉस क्यूची मॅग्निट्यूड. पी क्रॉस क्यू काय, पी आणि क्यू काय आहेत, पी अँड क्यू आर ॲडजस्टंट साइड्स ऑफ द पॅरलोग्राम. सो दिस प्रूव्स द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इज the magnitude of cross product of two vectors is equal to area of parallelogram whose adjacent sides are the two vectors. असे त्या पॅरलोग्रामचा एरिया किती असेल तर त्या क्रॉस प्रॉडक्टच्या मॅग्निट्यूड एवढा. ही प्रॉपर्टी व्यवस्थित लक्षात ठेवा. आणि त्या मॅग्निट्यूडचा हाफ केलं तर काय मिळेल आपल्याला, हाफ ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू जर करसाल तर तुम्हाला काय मिळेल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिळेल. अजून एक प्रॉपर्टी तुम्ही वाढवू शकता,